Okay, we are going to start our next topic, the pollen-pistil interaction. As you know that after pollination, the pollen grains fall onto the surface of stigma, clear, via self-pollination or the cross-pollination. But which one is the right pollen grain, which one is the wrong pollen grain? This thing is decided onto the surface of the stigma. So children, wrong type of pollen is called as non-compatible pollen. सपोज दैट अगर कोई स्पीशीज़ है, एनिमोफिलस है, पॉलिनेशन एनिमोफिलस हुआ और कोई भी पॉलन ग्रेन वाया एयर इस स्टिग्मा के ऊपर आ गया जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ का है, तो क्या होगा? देयर इज़ अ चेकिंग ऑफ द compatibility ऑफ द pollen grain onto the surface of stigma. Means there is a dialogue between the pollen and stigma. They dialogue themselves. Clear? कैसे होगा ये? This can be decided by the chemical present onto the stigma. As you know that कि stigma पे कुछ chemicals होते हैं that provides the favorable medium for the growth of the pollen grain. Clear? So ये stigma ही जो है decide करेगा कि whether this pollen is the wrong type or this pollen is the right type. अगर wrong type का pollen होगा reject हो जाएगा germination का process. अगर pollen right type का है, then what happen? This particular point which we call as germ pore, okay, germ pore, in time grows or forming a pollen tube, okay. ये in time grow करके pollen tube form करेगी. This pollen tube you can say entered inside the embryo sac via micropyle. ये normal process होता है. Question arises, how the pathway decides? The pollen tube pathway is decided by the synergids. Children, synergids are the pollen attractors. They provide the pathway, they provide the location, okay, and the synergids guides this pollen tube to grow and enter this embryo sac. ठीक है? अब 3 वेज होते हैं. मैंने यहाँ फिगर में एक ही वे ड्रॉ किया है. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पोरोगैमी. दिस फिनोमेना मीन्स दिस pollen tube if enter inside the embryo sac via micropyle, this is called as porogamy. If it will enter towards the chalejal portion of the ovule, it is called chalejogamy. And if it enter via integumentary side, this is called as mesogamy. Clear? So there are 3 ways: porogamy, chalejogamy and mesogamy. But here in the diagram, porogamy is shown. Then after what happened? This particular pollen grain when enter inside the embryo sac, one of the synergid, clear? Look at this diagram. One of the synergid get burst. The filiform operators of the synergid, they provide the pathway particularly for the entry of the pollen tube inside the embryo sac. Clear? And here you can see that these 2 male gametes, okay, entered inside. Here the synergid, another synergid, here the egg, and these 2 are the pollen. These 2 are the polar nucleus. Okay. अब फाइनली pollen tube pistil के अंदर एंटर कर गया है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर गया है. नेक्स्ट नाउ डिस्कस व्हाट अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन हियर. चिल्ड्रन, इन डबल फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल one of the male gamete fuses with the egg, okay, fuses with the egg of the embryo sac, and this process is called as fertilization or syngamy. This process is called as fertilization or syngamy, and there is a formation of the zygote takes place having 2 ploidy. Means syngamy, the process of fertilization जिसमें एक egg जो present है already, one of the male gamete, 2 male gametes are there, one of the male gamete fuses with this और zygote का formation करता है. This is called actual fertilization, this is called syngamy. But one of the male gamete again
This is the next male gamete. Fuses with the two polar nuclei. Fuses with the two polar nuclei. So here is the two polar nuclei. Clear? This fuses together. This process is called as triple fusion. And there is a formation of the triploid structure takes place. The triploid structure is called as what? Pen. Okay? So another male gamete fuses with the two polar nuclei. This process is called triple fusion, and the formation of the triploid structure takes place is called as pen. So children, first male gamete पहले जाइगोट पे इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन में, और सेकेंड मेल गैमीट पेन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है. लेट्स डिस्कस दैट व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन देन कॉल्ड. अगर हम बात करें फॉर्मुलेशन के तौर पे तो सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, दिस is called as double fertilization. Syngamy plus triple fusion both together is called as double fertilization. ठीक है? Okay, so this is overall thing. Now children, we are talking about the artificial hybridization. ये तो प्रोसेस नेचुरल था, जनरल था, जो कि नेचुरली पॉलिनेशन के बाद फेवर होता है प्लांट्स के अंदर. और आपको बता दूं कि जाइगोट देन फॉर्म दी एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जिससे न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा, न्यू प्लांटलेट डेवलप करेगा, एंड दिस पेन अनदर फॉर्म दी एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म लेटर ऑन वी डिस्कस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हॉर्टिकल्चरिस्ट के थ्रू यूज़ किया जाता है, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज़ किया जाता है. इसमें होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन, सेकेंड इज कॉल्ड एज बैगिंग, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज टैगिंग. इमैस्कुलेशन एज द नेम सजेस्ट, ई मीन्स इंसिजन, हटा दिया, मैस्कुलेशन मीन्स मेल ऑर्गन को. तो इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल चिल्ड्रन, तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसके मेल पार्ट मीन्स स्टेमन को कट करके हटा दिया. अभी फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के बावजूद कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल हो गया. अब हम अपने डिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन्स को, जिसको हम चाहते हैं कि ये ब्रीड ये अच्छा है, उसको हम स्टिग्मा के ऊपर स्प्रेड करते हैं. एंड फाइनली आफ्टर दैट वी कवर द होल फ्लावर विद द हेल्प ऑफ अ बैग. दिस स्टेप इज कॉल्ड एज बैगिंग. एंड फाइनली हम एक टैग लगा देते हैं उसके ऊपर कि किस स्पीशीज से किस स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन है, which variety is there, लिख देते हैं उसमें. दिस इज कॉल्ड टैगिंग. In your NCERT book only 2 steps are given, so don't be take tension regarding to this. This is also sufficient. First step is emasculation, cutting or removal of the male part from the bisexual flower, and second is the bagging. After spreading the desirable pollen grain onto the surface of stigma, we bagged them. What is the reason to bag? बैग करने का रीज़न ये होता है कि कोई अनदर जो है दूसरे तरह का कोई पॉलन उस स्टिग्मा के ऊपर फॉल ना करे, जिसकी वजह से आपके प्रोसेस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए. क्लियर चिल्ड्रन? दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. वन थिंग मोर, इफ द फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, so there is no need of artificial hybridization. This technique is only applicable on the bisexual flower. Flower unisexual है तो emasculation की कोई ज़रूरत नहीं है. This is only for the bisexual flower. Now, after fertilization, there is some post-fertilization changes. So let's now discuss about the post-fertilization changes, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे development of embryo के बारे में. Okay? So children, after post-fertilization, this is the scenario of the embryo sac. Means there is a formation of the diploid zygote takes place. The work of synergies is totally done, so they becoming degenerating. After triple fusion, clear, there is a formation of pen takes place, and these anticoats
encoders are also degenerate because they provide their sufficient nutrient for that process. Clear? They start degenerating. So we start from this diagram. So in this two parts we discuss. First is development of embryo and second is the development of endosperm from the pen. तो पहले हम जाइगोट का डेवलपमेंट देखते हैं कि जाइगोट कैसे एम्ब्रियो के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो लेट्स सी, दिस इज द जाइगोट, दिस इज द डिप्लॉयड बॉडी, दिस इज द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस, but the cytokinesis is somewhat you can say different, somewhat unequal. The above cell is somewhat larger than the lower cell. Clear? You can see that this particular cell start dividing first. Okay, upper cell start dividing first and it form the what? Haustorial cell. It start dividing first to form the suspensor and the topmost cell is somewhat enlarged in size. This is called as haustoria or haustorial cell. Children, इस haustorial cell का फंक्शन क्या होता है? ये haustorial cell नॉर्मली एंडोस्पर्म में इम्बैड करके न्यूट्रिएंट्स को डराइव करके जाइगोट को प्रोवाइड करती है ताकि एम्ब्रियो का ग्रोथ अच्छे से हो सके. तो दिस हास्टोरिया यू कैन से stick in the endosperm and provide the nutrient directly to the developing embryo. इसलिए ये टॉप मोस्ट होती है, ये इनलार्ज होती है और इससे लगी हुई आपको ये मल्टी सेल स्टेज दिख रही होगी, स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको आप यहाँ पे क्या बोलते हो? सस्पेंसर कहते हो. फाइनली दिस लोअर सेल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इट फॉर्म द एम्ब्रियो. ठीक है, एम्ब्रियो पहले 2 सेल्ड में कन्वर्ट होगा, फिर 4 सेल्ड में होगा, फिर 8 सेल्ड में होगा. इस तरह से ये डिवाइड करता है एंड फाइनली इट डेवलप्स इनटू अ ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. दिस स्ट्रक्चर, globule like structure of the embryo is called as globular embryo. Globular embryo you start seeing here, यहाँ पे एक notch develop होती है lower portion से and this becoming assume a heart shape structure. तो इस embryo के structure को हम क्या कहते हैं? heart shaped embryo. Okay, this is called as heart shaped embryo. अभी ये ग्रो करना शुरू करेगा और ग्रो करके ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में डेवलप कर लेगा अपने आप को, जो आपको 2 कॉटिलिडनस के फॉर्म में दिख रही है. सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट. इसलिए यहाँ पे 2 कॉटिलिडन्स डेवलप है. यही चीज बिल्कुल मोनोकॉट्स के भी केस में होगी, मेज के केस में, वीट और राइस के केस में, जहाँ की सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है बिकॉज दे आर मोनोकॉट्स. So you can see first radicle develop. Okay, radicle का ये पोजीशन है एम्ब्रियो का जहाँ से रूट का डेवलपमेंट होता है. क्लियर? ये प्लूम्यूल का पोर्शन है जहाँ की शूट का डेवलपमेंट होता है एंड these 2 are the cotyledon. So children, this structure is present in the seed. जब भी आप पी या फिर ग्राम को सोक करके उसको पिल ऑफ करते हो तो आप देखते हो सीड कोट के अंदर, ठीक है, आपको 2 कॉटिलिडन्स दिखते हैं एंड बोथ कॉटिलिडन्स इनसाइड देयर इज अ एम्ब्रियो. लुक एट दिस, समवट लाइक अ स्ट्रक्चर यू हैव. दिस इज द एम्ब्रियो. दिस, यस, ठीक है. एंड जब आप स्प्राउट खाते हैं, स्प्राउटेड सीड्स करते हैं तो आप देखते हैं कुछ वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है. वो क्या होता है? रेडिकल होता है. रेडिकल कम्स फर्स्ट, आफ्टर दैट प्लूम्यूल grows. Okay, now children we are going to discuss the endosperm. आपकी बुक में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले दिया हुआ है, देन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दिया है. डू यू नो व्हाई इट इज? बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो प्रीसीड्स द डेवलपमेंट. ओके, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट. पहले इसका बनना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये पहले नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन देगा? तो पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. क्लियर? तो जो पेन स्ट्रक्चर फॉर्म था, दिस इज व्हाट? दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. This primary endosperm
grows, okay, and develop the endosperm. तो ये क्या करता है? ये करता है फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, okay, and it forms the endosperm. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब कुछ ऐसे आप समझो कि दिस इज द पेन, सपोज दैट दिस इज द पेन, और ये पेन अंडरगो करता है, इट अंडरगोज इन multinucleated structure, divide mitotically many times. This condition is called as free nuclear division. For example, you can take the coconut, okay. अभी क्या होगा? This free nucleus, these nucleus are present here. They arrange towards the periphery like this. ये periphery को centrally arrange करना शुरू कर देते हैं, and they leave a vacuole inside. They leave a vacuole inside. जब आप कभी भी कोकोनट को देखो तो कोकोनट में आपको सराउंडिंग में आपको वाइट कर्नल दिखाई पड़ता है, दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, और सेंटर में आपको लिक्विड दिखता है, दैट इज अ लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट. क्लियर? सो दिस पर्टिकुलर फ्री न्यूक्लियस दे बिकमिंग सेलुलराइज, ये सेलुलर फॉर्मेशन करने लगते हैं. तो पहले इनमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर इनमें सेलुलर डिवीजन होता है, कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं. ठीक है. नॉर्मली सेल डिवीजन में क्या होता है कि फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस, बट यहाँ नहीं है, ऐसा है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में फ्री न्यूक्लियर डिवाइड्स करने के बाद ये सेंट्रली जो है पेरिफेरी से सेंट्रली प्लेस होना शुरू करते हैं. फिर इनमें सेलुलराइजेशन होता है, सेलुलर होते हैं, एंड दे लीव अ हॉलो पोर्शन इनसाइड जहाँ लिक्विड एंडोस्पर्म होता है. So this is called the cellular endosperm of the coconut. This is called as the liquid endosperm of the coconut. इसी एंडोस्पर्म से whether the case of monocot or dicot, clear, वहाँ पर एंडोस्पर्म मोनोकॉट्स में fully exhaust हो जाता है. Clear? Monocots they are non-endospermic. Sorry, monocots are endospermic. मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. डाइकॉट दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक. डाइकॉट जैसे पी है, ग्राम है, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन वो फुल्ली एग्जॉस्टेड हो जाता है वाया एम्ब्रियो. बट मोनोकॉट्स में उनकी सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. दे आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड्स ऑल्सो. डाइकॉट सीड्स को हम क्या कह सकते हैं? डाइकॉट सीड्स को हम नॉन एंडोस्पर्मिक भी कह सकते हैं. आपने सीड्स देखा, सीड्स 2 टाइप्स के हो गए, ओके, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक. ओके, नेक्स्ट दैट इज फ्रूट. फ्रूट क्या है? फ्रूट नॉर्मली जो फ्रूट हम खाते हैं नॉर्मली वो डेवलप करते हैं ओवरी से. सो सच फ्रूट विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन केस द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट. क्लियर? जिसमें आपको क्लियर सारी चीज़ें दिखती हैं, उसके स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं. ओके, बट सम टाइम वी हैव सम फ्रूट इन आवर नॉलेज, दोज आर नॉट डेवलप फ्रॉम द ओवरी. एक्सेप्ट ओवरी दे डेवलप फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट. फॉर एग्जाम्पल एप्पल ले लेते हैं, गुआवा ले लेते हैं. द एडिबल पार्ट, द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द थैलेमस. हम थैलेमस एडिबल पार्ट की तरह यूज करते हैं. So the fruit which develop not from the ovary, another part of the flower they develop, such fruits are called as false fruit. These fruits are called as pseudocarpic. इनको हम pseudocarpic भी कहते हैं. True fruits जो ओवरी से डायरेक्टली डेवलप होते हैं इनको हम eucarpic भी कहते हैं. And one more fruit also children जिनको हम parthenocarpic कहते हैं. Parthenose means virgin, means non-fertilized, unfertilized. So ऐसे fruits जो बिना fertilization के develop हो जाते हैं. The excellent example of this category is banana. Banana के केस में जो है parthenocarpic fruits होते हैं and they are totally seedless. तो इन fruits को हम seedless fruits भी कह सकते हैं. Okay? रिसर्चर्स जो है वो लगे हुए हैं ऐसे ऑरेंजेस को डेवलप करने में जो सीडलेस हो, तो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द फ्यूचर पर्पस.